Okay, thank you. So, good morning, everyone. Myself, C.S. Shreyans Kothari. I am a practicing chartered accountant from Kolkata. Apart from that, I take a lot of sessions for AI and automation in Tally and Excel for the CA Institute and other institutions as well. So today I thought since Tally 7.1 beta version is released, so let's take a session on Tally 7.1 and let's discuss on the new features. So let's start. So first of all, एक बार like I want to ask you something. Tally हम में से कितने लोग यूज करते हैं एंड कब से यूज करने हैं? 5 years, 10 years, like और जस्ट अभी जो स्टार्ट किया है? 5 years, just started. Any more answers? So I was asking अपने टैली कब से यूज कर रहे हैं? 2 years. Anyone who is using tally for more than 5 years, say 8 years, 10 years, something down the line? Okay, no issues. Great, great, great. Got the answers. So mainly अपने सब जो use कर रहे हैं अपने mainly we are using it for like 1 to 5 years only. So if since I'm using tally for more than 8 years, so I have like if you'll observe there's a vast transition of tally from like 8 years 10 years back से अभी तक. Like 10 years back tally अपने क्या चीज के लिए यूज करते थे? It was only for bookkeeping. 5 years पहले like when the GST was introduced, tally was 5 years down the line, tally में GST का inclusion हुआ, and then we use it for accounting and GST. But now tally अभी क्या चीज के लिए यूज हो रहा है? It's for accounting, GST, data analytics, HR, payroll, automation, everything. So slowly and gradually, Tally is completely converting itself from being a bookkeeping tool to a complete reporting tool, right? So 7.1 में ऐसा क्या है जिसका अपडेट्स हमें डिस्कस करने की जरूरत है? So based on lot of feedback from our fellow professionals and everyone, Tally has given some beautiful updates in 7.1. So we'll start with the updates. So the first one, let me share my screen first. I hope my screen is visible. Is the screen visible? Anyone? Yes. Okay. So the first feature is काफी फीडबैक के बाद ये वाला फीचर है. लाइक अपने टैली में सेल्स का इनवॉइस और जनरेट करते हैं. सेल्स का परचेज का सेल्स का इनवॉइस हम जनरेट कस्टमर्स को भेजते हैं, क्लाइंट्स को भेजते हैं. कितने बार क्लाइंट से आया है कि ये इनवॉइस थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है, ये खाली ब्लैक एंड व्हाइट इनवॉइसेस है, इसमें आप कलर ऐड कर सकते हो, इसमें आप फोटो डाल सकते हो. या कोई क्लाइंट के लिए आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो तो क्लाइंट ने कहा कि इसमें मेरा कंपनी का लोगो डाल दो, कंपनी का पूरा लेटर हेड डाल दो. So these things come day in day out. So based on that एक अपडेट लाया गया है. Just a second. Yeah. Yeah. So I have opened a company. This is a company मैंने एक open किया है. This is and this is further this is Tally 7.1. So if you'll see here, just a second. Yeah, we'll go to F1. We'll go to settings.
विल गो टू अपग्रेड हियर. सो आप अगर यहाँ देखोगे, दिस इज द वर्जन टैली 7.1 रिलीज, बीटा वर्जन, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये कैसे कैसे खुद ट्राई कर सकते हैं टैली 7.1. सो इफ यू विल सी, आप अगर टैली सॉल्यूशंस जो वेबसाइट है उस पे आप अगर जाओगे, लाइक आई एम ओपनिंग द वेबसाइट नाउ. तो इसमें you will get the option to download the 7.1 version as well. So if you will click on download here, yeah. So it's coming Tally 7.0 here. Spirit. I'm not sure why it is not coming, but generally आप Tally 7.0 देखोगे उसके नीचे ही आता है कि if you want to download Tally 7.1 beta version, you will get the link here. यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे लिंक आता है. आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग नाउ. सो अगर आप चेकआउट करोगे वहां मिल जाएगा आपको. So I've downloaded from there only. With the same TSS, you can try the 7.1 beta version. So what are the changes? The first one is, yeah, I've opened a company. This is a jewelry trading company. I'll go to a sales invoice. So this is the sales invoice. So if you'll see here earlier, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया चेंज टेम्पलेट बोल के. राइट, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल. सो यहाँ एक चेंज टेम्पलेट का ऑप्शन आ गया. इफ यू विल if you will click on the change template option, you will get seven different types of templates here. So first four are the regular, like arranged templates. So there are different types of templates here. So यहाँ पे लोगो एंड कलर एंड एवरीथिंग आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो. सो द फर्स्ट फोर आर द प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स जिसमें डिफरेंट लेआउट्स दिए हुए हैं इनवॉइसेस के. द फिफ्थ वन, if we'll go to the fifth template, so this is a fifth template. This has multiple logo options as well. Suppose आप कोई कंपनी का you are dealing in say multiple brands products. You are a FMCG dealer. So आपके पास multiple brands का आप products कर रहे हो उसमें डील. तो ब्रिटानिया, सनफीस्ट, लाइक डिफरेंट ब्रांड्स, आप उनका भी यहाँ पे लोगो लगा सकते हो अपने लेटर हेड पे, एंड आपका कंपनी का लोगो एज वेल लगा सकते हो. सो दिस इज फॉर द मल्टीपल लोगो कंपनी. नाउ द सिक्स्थ वन इज फॉर द मल्टीपल एड्रेस. अगर आप यहाँ पे चाहो तो लाइक आपकी कंपनी का मल्टीपल एड्रेस है कि आपका कंपनी का प्रेजेंस पैन इंडिया है, तो डिफरेंट जगह पे एड्रेस है, तो वो सारे एड्रेस भी अगर आपको मेंशन करने हैं इनवॉइसेस पे तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे. एंड द लास्ट वन इज द लाइक द क्लासिक इनवॉइस जो अपना अभी भी जनरेट होता है. सो वी कैन कस्टमाइज ऑल दैट इनवॉइस. सो अब ये कस्टमाइज कैसे होता है, लेट्स फर्स्ट विल सी. अगर नॉर्मल क्लासिक इनवॉइस होता है, सो देयर इज, यहाँ पे आप अगर देखोगे इस टाइप का इनवॉइस जनरेट होता था पहले भी. इस टाइप का इनवॉइस एक जनरेट होता था पहले भी, जो टैली का क्लासिक इनवॉइस फॉर्मेट है. ठीक है. अब इस फॉर्मेट को अपने थोड़ा सा चेंज करते हैं. यहाँ पे यू कैन गो टू कंट्रोल एच और यू कैन गो फ्रॉम द माउस ऑल्सो. तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा डिफरेंट. ठीक है. अपने कोई भी एक फॉर्मेट लेते हैं से विल टेक द फर्स्ट फॉर्मेट. ठीक है. अब फर्स्ट फॉर्मेट लेके अपने पूरा फॉर्मेट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. So how we can do this is, the first one is add or remove fields. So
Here you will see one of the one auto wrap text. This we'll discuss later. Then print contribute address. You can insert a watermark there. जो अपने इनवॉइसेस है बहुत सारे सबका आता था कि कॉन्फिडेंशियल लिखना है, हमें पेड लिखना है इनवॉइस के ऊपर, जो वाटरमार्क में आना चाहिए, तो वो चीज आप यहाँ वाटरमार्क में डाल सकते हो. सो इफ यू विल एंटर हियर, आप यहाँ पे वाटरमार्क में इमेज भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो. ठीक है. देन द कंपनी लोगो, जो आपका कंपनी का लोगो है वो आपको डालना है, डाल सकते हो. कंपनी का हेडर फुटर आप डाल सकते हो. सो हाउ विल यूज दिस हेडर फुटर, आई विल एक्सप्लेन लेटर. आप यहाँ पे कंपनी का जो भी आपका लेटर हेड होता है, लाइक कंपनी का जो प्रॉपर लेटर हेड, आप उसमें इनवॉइस आपको जनरेट करना है, तो आप वो लेटर हेड और यहाँ डाल सकते हो. देन दिस आर द बेसिक डिटेल्स जो रहता है. देन यू कैन ऑल्सो हियर यू कैन ऑल्सो ऐड टर्म्स एंड कंडीशंस हियर. लाइक काफियों का सबका काफियों का डिमांड था कि इनवॉइसेस में हमें अपना टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखना है. वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप कस्टमाइज करके यहाँ लिख सकते हो. तो अपने एक एक करके एक बार कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन वाटरमार्क. ठीक है. सो आप चाहो तो यहाँ पे आप सपोज बस मैं टेक्स्ट एक वाटरमार्क देता हूँ, से आई विल राइट कॉन्फिडेंशियल. ठीक है. अब आप यहाँ पे इसका कलर चूज कर सकते हो, मल्टीपल कलर्स, कोई भी आपको कलर चूज करना है, आपको कलर चूज करके यहाँ डाल सकते हो. अगर आपको कलर में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट डाल सकते हो. और अगर आपको ये सब कलर्स नहीं चाहिए, तो आप खुद भी कलर कस्टमाइज करके डाल सकते हो यहाँ पे. जैसे आरजीबी के वैल्यूज है, रेड ग्रीन ब्लू के आप वैल्यूज दो, उस हिसाब से आपका कलर क्रिएट हो जाएगा. से आई गिव 73 154. सो ये इफ यू विल सी यहाँ पे कस्टमर कलर क्रिएट हो गया है यहाँ पे, बेस्ड ऑन मैंने क्या नंबर्स दिया उस पे. नाउ अब यहाँ पे पूछा अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, से आई से डायगोनल है. Say then it is asking me for the size of the watermark, कि वो इनवॉइस में watermark कितना बड़ा आएगा. So I select medium. Opacity is a transparency, कि कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा आपके इनवॉइस में watermark. So I select medium. So if you'll see here, यहाँ पे आप देखो एक कॉन्फिडेंशियल एक यहाँ पे आ गया watermark in blue color, क्योंकि मैंने यहाँ ब्लू कलर चूज किया था. सो लेट्स चेंज दिस. अपने यहाँ पे टेक्स्ट की जगह इमेज देके देखते हैं एक बार. So I've downloaded some images. मैं एक बार वहां से सिलेक्ट करता हूँ. तो आप अगर चाहो तो आप कंपनी का लोगो एज अ वाटरमार्क भी दे सकते हो, या लोगो की जगह भी डाल सकते हो. सो आई एम प्रेफरिंग कि मैं उसको एक वाटरमार्क की तरह दे दूं. सो आई सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल हियर, मीडियम, मीडियम. सो आई आई थिंक इट इज नॉट विजिबल. जस्ट अ सेकंड. इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ. आई होप दिस इज विजिबल. आप लोग को दिख रहा है वाटरमार्क? इज द वाटरमार्क विजिबल? ओके. ग्रेट. ग्रेट, थैंक यू. ठीक है. तो हमने वाटरमार्क कर लिया. नाउ वी गो टू द हेडर फुटर. ठीक है. नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन फॉर द हेडर फुटर पार्ट इज, आप सपोज आपने हेडर इमेज सिलेक्ट किया, यू कैन इंसर्ट एन इमेज हियर. सो आई सिलेक्ट यस. आई सिलेक्ट वन हेडर हियर. सो एक बार मैं हेडर इंसर्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. हेडर. सो अगेन इट इज आस्किंग कि जो इनवॉइस का टाइटल रहता है, जो आप टाइटल लिखते हो, टैक्स इनवॉइस या प्रोफोर्मा इनवॉइस या जो भी, उस हेड उसके वो टाइटल के आपको नीचे हेडर चाहिए कि ऊपर चाहिए. सो आई सिलेक्ट अबव इनवॉइस टाइटल. फिट इमेज टू पेज विड्थ, जो आपका इनवॉइस का साइज है, उसका पूरा जो उसका विड्थ है उसमें आपका पूरा फिट हो जाएगा हेडर. वो आपको करना है क्या? तो आई सिलेक्ट यस. एंड अप्लाई इमेज टू फर्स्ट पेज ऑफ द इनवॉइस और ऑल पेजेस. सो आई सिलेक्ट ऑल पेजेस. ठीक है. नाउ यू कैन सी लाइक दिस इज द हेडर. इस तरह का अपने हेडर बना सकते हैं. यहाँ पे आप हेडर डाल सकते हो. सो दिस विल कम इन द इनवॉइस, कि इस तरह से आप यहाँ पे
ओके, नाउ अगेन ए सिमिलर वे में अपने फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं. हाउ कैन इंसर्ट द फुटर? सो द शॉर्टकट फॉर हेडर इज F6 and for shortcut of footer is Alt F6. So click on Alt F6. So you get a footer option here. आप यहाँ पे yes कर दो. यहाँ पे आप insert कर दो. Like I'm inserting one footer. Like fit the image to page with yes all pages. So you get something like this. Header भी insert हो गया, footer insert हो गया. ठीक है. Now the next option is custom field. Suppose अब जैसे आपके इनवॉइसेस में एक मिनट अपने एक बार इनवॉइस को जूम करते हैं. यहाँ पे अब जैसे इनवॉइस में आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, जीएसटी नंबर आ रहा है, ईमेल आ रहा है. मेरे को यहाँ पे एफएसएसआई नंबर भी चाहिए. मेरे को एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना है. तो वो आप यहाँ पे कैसे डाल सकते हो? उसके लिए यू कैन ऐड अ कस्टम फील्ड हियर. जो फील्ड्स प्री डिफाइंड टैली में नहीं है, अगर आपको इनवॉइस में चाहिए तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो. पार्टी का डिटेल्स हो गया, कुछ फुटर में आपको डालना है या कोई कंपनी का डिटेल्स में डालना है. सो से मुझे कंपनी का डिटेल्स में डालना है. ठीक है. अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, एक तो टैक्स टैन नंबर या फिर आप मैनुअली डाल दो. सो आई क्लिक एंटर डिटेल्स मैनुअली. आई से फील्ड टाइटल इज एफएसएसआई नंबर. राइट. So I field value is say one. So this is a completely created FSI number. This is not an actual number, just for the demonstration purpose. तो ये मैंने इंसर्ट किया. नाउ अगर आप एक बार इसको अपने को वापस जूम करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे कंपनी नेम में, यहाँ देखो नीचे एफएसएसआई नंबर आ गया. सो इज दिस विजिबल? एफएसएसआई नंबर दिख रहा है आप लोग को? जो पहले नहीं आ रहा था वो अभी आ गया है यहाँ पे. राइट. तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो. कुछ भी आपको इंसर्ट करना है, आपको इंसर्ट कर सकते हो. जस्ट अ सेकंड. सो या, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉन्ट एंड कलर. आप यहाँ पे सपोज जो मेरा लेटर हेड है ये कुछ आपका ब्राउन कलर क्रीम कलर में आ रहा है, बट ये जो मेरा नीचे का बॉडी है ये सब ब्लू कलर में आ रहा है. आप अगर देखो तो सो इट इज नॉट मैचिंग विद द हेडर. यहाँ पे आप कलर इंसर्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप फंड चेंज कर सकते हो. यू हैव अ लिस्ट ऑफ फंड्स, आप वो भी चेंज कर सकते हो. एंड देन यू कैन सेलेक्ट द, आपको यहाँ पे अगर कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो. फ्रॉम द पैनल अगेन आपको कुछ लेना आप ले सकते हो, नहीं तो आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो. अगेन अब आपको अगर नहीं पता, सपोज किसी को यहाँ क्रिएट करना है बट दे डोंट नो कि मुझे कलर के लिए क्या, मतलब क्या इसका वैल्यूज डालूं मैं, देन यू कैन ऑलवेज गो टू एनी एलएलएम. आप वहाँ पूछ सकते हो कि मुझे ये क्या कलर क्रिएट करना है, इसका आरजीबी वैल्यूज क्या होगा. So they can give and you can write here. So suppose say I ask the LLM, just a second. So I go to ChatGPT here. I want to create a dark brown color. What are the RGB values for the same? Right? तो ये आपको यहाँ पे नंबर्स दे देगा. जस्ट अ सेकेंड. नेट का कुछ इशू हो रहा है, एक मिनट होल्ड करिए. या, सो इट हैज कम. तो इसमें ये सारे कलर्स आ गए. सो से आई से दिस रिच रिच डार्क ब्राउन. सो आरजीबी 74 47 39. सपोज आई यूज दिस 74 47 39.
सो आई गेट अ ब्राउन कलर हियर। आप इस तरह से कलर ले सकते हो। एंड नाउ द बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर में आपको आपको कुछ कलर देना है कि आपका पूरा इनवॉइस का बैकग्राउंड उस कलर का हो जाए, आप वो दे सकते हो। आई प्रेफर, मैं एक बार नहीं दे रहा हूँ वहां पे। एंड फंट कलर, नाउ व्हाट इज दिस फंट कलर? अगर आप यहाँ जैसे इफ यू सिलेक्ट ऑटो हियर, आप अगर यहाँ पे डार्क कलर चूज करोगे देन ऑटोमेटिकली द फंट विल कम इन व्हाइट कलर। एंड अगर आप यहाँ लाइट कलर चूज करोगे देन द फंट विल कम इन ब्लैक कलर। ये ऑटो में आ जाता है। अदरवाइज अगर आपको कोई स्पेसिफाइड कलर यहाँ पे डालना है देन यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट, यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट दैट। तो अपने इसको एक बार एंटर करते हैं। तो इफ यू ऑब्जर्व, मैंने ब्राउन किया यहाँ पे, देखिए सब ब्लैक, सब व्हाइट हो गया यहाँ पे। अपने एक बार जूम करके देख लेते हैं। तो सी, यहाँ पे सब आपका व्हाइट में आ रहा है। नाउ अपने सो लाइक आप लोग बोलोगे कि ठीक है, आपने बोला डार्क में व्हाइट आ गया, लाइट में ब्लैक कैसे होगा? एक बार अपने वो भी चेक कर लेते हैं, हो सकता नहीं हो। एक बार उसको देख लेते हैं करके। से सिलेक्ट एनी लाइट कलर, क्रीम ब्राउन। ठीक है, ऑटो करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे, इट हैज अगेन कन्वर्टेड द फंट कलर टू ब्लैक, राइट? तो ये ब्लैक हो जा रहा है। ओके, अगेन एक बार अपने इसको कलर को चेंज कर देते हैं। फंट को थीम कलर कस्टम, ये राइट। ठीक है, ये मैंने यहाँ चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज। अब सपोज करो आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड प्रॉपर्टी का नाम चेंज करना है। से यहाँ पे आप जाते जाओगे, बाई जस्ट अप एंड डाउन स्क्रॉल आप करोगे तो यू विल गेट द ऑप्शंस हियर। सो यहाँ जैसे कॉन्टैक्ट आ रहा है, इसको मेरे को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, इसको मेरे को लिखना है नंबर या मोबाइल नंबर। तो आई जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल एंटर। तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट आई कैन राइट से व्हाट विल आई राइट, मोबाइल नंबर। सो अगर आपको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक्स करना है इटैलिक्स कर सकते हो। देन देयर इज एडवांस ऑप्शन। आप इसका भी, आपको फॉन्ट या कुछ भी साइज या कलर या कुछ चेंज करना है तो वो सब आप कर सकते हो। सो आई प्रेफर नॉट टू, अभी मैं नहीं करता हूँ। तो आई क्लिक नो। तो इफ यू ऑब्जर्व, देखो आप यहाँ पे बोल्ड भी हो गया है, ये इटैलिक्स भी हो गया है, एंड मोबाइल नंबर आ गया इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट। जो कि इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस टैली वर्जन, द इनवॉइस का फॉर्मेट वाज वेरी रिजिड। आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते थे। बट विद दिस रिलीज, टैली हैज गिवन दिस फ्लेक्सिबिलिटी टू अस कि आप चाहो तो आप फील्ड्स भी चेंज कर सकते हो। नाउ एंड दिस, अगर आप ऑब्जर्व करोगे वंस, लाइक मोबाइल के सामने ये जो है कॉन्टैक्ट, दीज आर द प्लेस होल्डर्स। व्हाट डू यू मीन नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस होल्डर? जो आप टैली में इनपुट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आए डेटा। सो वो मैपिंग किया हुआ है कि ये जो कॉन्टैक्ट फील्ड है, ये टैली में एक फील्ड है कॉन्टैक्ट बोल के। आप वहां पे जब भी डेटा डालोगे देन इट विल कम ऑटोमेटिकली हियर। जस्ट अ सेकंड। नहीं सर, आप समवन इज आस्किंग कि आपको फुटर में कुछ अगर ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो। सो by this only, like what we are discussing, let's complete that first. So यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक फील्ड बना हुआ है टैली में। आप कुछ भी आप टैली में इनवॉइस में डिटेल्स में आप वहाँ एंटर करते हो तो इट गेट्स ऑटोमेटिकली मैप्ड हियर। सो आई आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला जो पार्ट है, जो कॉन्टैक्ट या जो इस तरह से जो दोनों साइड आपका ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, उसको आप कभी भी छेड़ो नहीं, क्योंकि दोज आर प्लेस होल्डर्स, वो टैली का कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। अदर देन दैट ये सारी जो फील्ड्स है ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ आई गॉट अ क्वेश्चन हियर कि अपने फुटर में हमको कुछ एडिट करना है तो हाउ कैन आई डू दैट? तो अपने नीचे जाते हैं। तो इनवॉइस में जितनी फील्ड्स है उसको आप पूरे को चेंज कर सकते हो। नाउ सपोज अब यहाँ सिग्नेचर है, मेरे को यहाँ पे सिग्नेचर का इमेज डालना है। सिग्नेचर का, अब आप यहाँ जैसे नीचे आ गए तो आप यहाँ फुटर भी आप पूरा चेंज कर सकते हो। जो इमेज है उसको आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन इनवॉइस में जहां भी ये फुटर का भी डिटेल है उसको आप चेंज कर सकते हो। नाउ दिस सिग्नेचर मेरे को चेंज करना है, ऐसे क्लिक ऑन कंट्रोल एंटर। सो आई गेट एन ऑप्शन की इमेज मेरे को जो डालना है। सो आई क्लिक ऑन इमेज। यहाँ पे मैं एक बार एक इमेज डालता हूँ। Just यहाँ पे मैंने एक सिग्नेचर डाल दिया, वो सिग्नेचर आ गया यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये मैंने सेव किया। देन देयर इज अ प्रिंट सेटिंग्स। अब आपको ये साइज और जो भी रखना है इनवॉइस का वो सब आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे। ये मैंने ये अपने यहाँ कर दिए। अब इसको आप सेव कर सकते हो टेम्पलेट को। सो आई एम नॉट सेविंग दिस। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, या जैसे आप सेव पे जाओगे अपने टेम्पलेट का आपको जो भी नाम देना दे दो से इनवॉइस, आज का डेट 3105/2026। ठीक है। सेट एज डिफॉल्ट फॉर ऑल सेल्स, कि आपको सारे सेल्स इनवॉइसेस के लिए सेम फॉर्मेट चाहिए तो आप उसको सेव कर सकते हो यहाँ पे। नहीं तो आप फॉर्मेट सेव रख सकते हो, आपको जैसा इनवॉइस आप उस समय चेंज भी कर सकते हो उसको। And then the additional configuration. So save template for this company or for the all company. So अगर आपका क्लाइंट स्पेसिफिक फॉर्मेट है कोई, तो आप वो उस कंपनी के लिए सेव करो। अगर जनरल फॉर्मेट आपने कुछ फॉर्मेटिंग करके कुछ किया है बेटर, तो वो आप सारे कंपनीज के लिए कर सकते हो। एंड सेव प्रिंटर एक्सपोर्ट की वही फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो प्रिंट हो, वो चीज आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये हमने सेव कर दिया। द शॉर्टकट इज कंट्रोल L। आप उससे सेव हो जाएगा। Now I have created one invoice format here। ये मैंने क्रिएट किया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हियर यहाँ पे आप जो प्रिंट करने जाओगे यहाँ पे आपका टेम्पलेट नेम भी दिखा रहा है। सो दिस इज द टेम्पलेट नेम विच यू हैव क्रिएटेड नाउ ओनली। सो प्रीव्यू, ये इस तरह से दिखाएगा। दिस इज द टेम्पलेट। सो एक सेकंड, इस तरह से अपना फॉर्मेट दिखा रहा है इनवॉइस का। यहाँ पे कंपनी का नाम एंड प्लेस एंड एवरीथिंग, द क्लाइंट डिटेल्स एंड बेस्ड ऑन दैट जो नीचे डिटेल्स है वो सब आ जा रहा है उसका। ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रखा था ऐसे। इफ आई चेंज टेम्पलेट हियर, यहाँ पे दिस वन, सॉरी क्या, दिस वन मैं इसको लेता हूँ, कंट्रोल ए। सो दिस इज, ये मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा था। तो इफ यू सी हियर ये इस तरह से आ रहा है। नाउ सपोज अब यहाँ पे मेरा, यहाँ पे बुक वाटरमार्क हेडर फुटर कस्टमाइज सब कुछ आ रहा है। नाउ सपोज मेरे को ये इतने कलर्स नहीं चाहिए, ये जो इतने जगह ब्राउन कलर्स ये सब जो आ रहे हैं, यू कैन ऑलवेज अब ये कलर्स हटा सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन है प्रिंट विदाउट कलर, और यू कैन क्लिक ऑन ऑल्ट आर, तो वो प्रिंट विदाउट कलर हो जाएगा। नाउ यू क्लिक ऑन प्रीव्यू, तो आपका क्लीन इनवॉइस आ रहा है विद द हेडर फुटर। तो आपका एक लेटर हेड फॉर्मेट में बन गया, आप उसमें इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हो। ठीक है। नाउ अब अगर आप चाहो तो ये चीज को आप यहाँ कस्टमाइज भी कर सकते हो। सपोज अपने ऑल्टर में गए, वाउचर टाइप भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। सपोज सेल्स में गया मैंने, यहाँ पे सपोज बहुत सारे कंपनीज में होता है कि सेल्स का 3-4 टाइप का वाउचर बना हुआ है। कि ये एक सेल्स, सपोज जनरली सर्विस फॉर्म्स में होता है, प्रोफेशनल फीस के लिए एक बिल एक टाइप का वाउचर है, सेल्स का एक टाइप का वाउचर है, अलग अलग टाइप का। तो वहां आप अलग अलग टेम्पलेट्स असाइन कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने टेम्पलेट असाइन किया डिफॉल्ट टेम्पलेट ज्वेलरी, तो ये मैंने कंट्रोल ए किया। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, आप यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने यस किया, तो से पेड इन कैश। ठीक है। तो इसमें क्या टर्म्स होगा, गुड्स वंस टोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। उसके बाद है वंस, सो दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। वन सेल्स इज डन, नो रिफंड। ठीक है। ये मैंने यहाँ दिया। अब मैं सेकंड देता हूँ, सेल्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे रहेगा पेमेंट विद इन 15 days फ्रॉम इनवॉइस डेट, डिले बियॉन्ड ड्यू डेट, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट 5% पर annum। से ये मैंने टर्म्स दिया, ये मैंने कंट्रोल किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिफॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्या लेना है। तो से मैंने देता हूँ पेड इन कैश ही लेना है। ये मैंने सेल्स के लिए सेव कर दिया। ठीक है।
अब एक आपने वही इनवॉइस पे वापस जाते हैं, कंट्रोल पी किया मैंने, रिव्यू किया। अब अगर आप यहाँ देखोगे, एक मिनट, यहाँ देखो आपका यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ गया। ये आपका कैश वाला टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहा है। गोल्ड वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक वन सेल्स इज डन, नो रिफंड। अब ये मेरे को चेंज करना है टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप कॉन्फ़िगर करोगे, यहाँ पे आपको आएगा टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये मेरे को करना है क्रेडिट वाला, ये मैंने क्रेडिट किया। आप इसको प्रीव्यू करो, जूम, यहाँ पे आपका क्रेडिट का टर्म्स आ गया यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, इस तरह से। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेजर अपडेट्स और वन ऑफ द एनहांसमेंट्स इन टैली 7.1, कि आप पूरी तरह से जो इनवॉइस है उसको कस्टमाइज करके आप अपने फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हो, सो दैट एक जो आपके कस्टमर्स है उनको भी एक बेटर एक मिलता है, and आपका आपका कंपनी का भी एक बेटर ब्रांडिंग, बेटर विजिबिलिटी होता है। सो दिस यू कैन डू। सो अगर लाइक इफ आई शो यू वन मोर एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द कंपनी। अब मैं एक और कंपनी का आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज अ कंपनी हियर, इसका मैंने एक इनवॉइस डिजाइन किया था जस्ट अभी। सो मैं इसको देखूं, यहाँ पर preview में जाऊँ, तो दिस इज अ मिनरल वाटर ट्रेडिंग कंपनी। तो इस तरह से यहाँ पे इनवॉइस डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पे लोगो एंड सब कुछ आ गया, यहाँ पे नीचे डिटेल्स आ गया, तो यहाँ पे आ गया। तो फॉर दिस, इस केस में सिंस मिनरल वाटर ट्रेडिंग कंपनी, इट डील्स इन लाइक मल्टीपल ब्रांड्स, तो आप यहाँ चाहो तो मल्टीपल लोगो वाला इनवॉइस फॉर्मेट भी यूज करके उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है। सो so I hope this first feature is clear. किसी को भी कोई क्वेरी है, किसी को एनीथिंग, एनीवन वांट्स टू सजेस्ट एनीथिंग, so I'll be happy to address it. Anything, anyone, any queries, anything. So just a second. If anyone wants to say anything, wants to unmute themselves, then also they can do it for this feature. If anyone wants to ask anything or anyone wants to discuss on that, you can always unmute yourself and say anything if you want to ask. Anyone? Okay, not an issue. Let's move to the next update, next enhancement जो आया है. So let me share my screen here again. So the next feature is wrap text. याद है हम टाली में लाइक आप कोई लेजर का नाम लिखते थे या कोई भी कुछ बड़ा सा नाम लिखते थे, तो वो छोटा होता जाता था साइज उसका, एंड पूरा वो फील्ड ब्लैक हो जाता था, आपको दिखेगा ही नहीं क्या लिख रहे हो आप। तो उस चीज को एनहांस किया गया है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग ने भी फेस किया है कि खाली मेरे को ही लगा है? प्लीज आप लोग अगर रिप्लाई करोगे देन लाइक आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको भी कुछ लाइक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो वो प्रॉब्लम को भी यहाँ पे डील किया गया है। ओके, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कैसे डील किया गया वो एक बार अपने देखते हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ से क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ,
नाउ इफ यू ऑब्जर्व कि ये आपने अपने आप ये लेफ्ट शिफ्ट होते जा रहा है, ये आपका साइज छोटा नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप अगर यहाँ देखो, ये यहाँ पे हो रहा है। सो कंपेयर टू दिस, अगर अपने एक बार पुराना टैली में अपने जाते हैं, ये अपने एक बार मैंने ये अपने आए हैं टैली 7.0 में। सो एक बार अपने चेक कर लेते हैं, दिस इज टैली 7.0, राइट। तो एक बार इसमें अपने लेजर क्रिएट करके देखते हैं, ये जो अपने यहाँ क्रिएट कर रहे थे। टुडे इज 31 मई 2026। तो इफ यू ऑब्जर्व, ये छोटा होता जा रहा है, राइट। और ये इसके बाद ले भी नहीं रहा है, देयर इज अ वर्ड लिमिट। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो भी ये ले नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जितना टाइप करते जाओ ये लेते जाएगा। अब ये एक पर्टिकुलर एंड के बाद ये नहीं ले रहा है, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो इस तरह से यू विल सी द लेजर नेम। ये ऑटो रैप हो गया यहाँ पे, पूरा टेक्स्ट या रैप होके यू कैन व्यू दिस हियर। तो एक सेकंड, अपने इसको थोड़ा सा लॉजिकल रखते हैं। ये मैंने बनाया से, ये मैंने एक लेजर बना दिया, ठीक है। अब मैं इसमें एक बार ट्रांजैक्शन करता हूँ। ये आप अगर यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ सर्च भी कर रहा हूँ, आपका ये सर्च में भी पूरा प्रॉपर दिख रहा है। कितना भी बड़ा होगा ये आप क्लियरली रीडेबल है, ये आप पढ़ सकते हो, तो आपको भी समझ में आएगा। ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, सेल्स लेजर सेलेक्ट। अब यहाँ पे ये स्टॉक आइटम है, ये भी मैं बनाता हूँ। ये मैंने एक स्टॉक आइटम बनाया, ठीक है, ग्राम। इसको मैं यहाँ पे, अब ये भी आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब यहाँ मैं इसका जैसे यहाँ पे मैंने डाला, सपोज करो आपका 10 ग्राम से दिस। सो एक बार अपने जीएसटी का पार्ट एक बार इग्नोर करते हैं, जस्ट एक बार डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एंट्री में आप पूरा यहाँ पे व्यू कर सकते हो, वो क्लियरली समझ में आएगा। अब ये जो इनवॉइस हमने जनरेट किया गया, इसको हमने प्रिंट करते हैं, तो ये दिखेगा क्या, लेजेगा नाम एंड एवरीथिंग। एक बार इसको देखते हैं। आप यहाँ देखो, ये लेजेगा नाम पूरा प्रॉपरली दिख रहा है, स्टॉक का नाम भी पूरा प्रॉपरली दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी छोटा नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा आपका विजिबल है। ये प्रिंट में भी दिखेगा, आप कुछ इनपुट करोगे तो भी दिखेगा। एंड सपोज मैं अब इसको सर्च करता हूँ, DAL करके, टुडे, यहाँ पे अगर आप इसको सर्च भी करते हो तो भी आपको क्लियरली दिखेगा ये यहाँ पे। तो दिस इज द रैप टेक्स्ट फीचर। तो इस तरह, लाइक दिस इज वन ऑफ द अपडेट्स जो लाया गया है। अब आप यहाँ चाहो तो अगर आपको रैप टेक्स्ट नहीं चाहिए, आप वो भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। आप जाओगे यहाँ पे अपने प्रिंट, जस्ट अपने आप प्रिंट में जाएंगे। तो अपने यहाँ पे जाएंगे, एक कंट्रोल की, अपने ऑल पी में गए। आप यहाँ चाहो तो इसको, यहाँ पे ये जो रैप टेक्स्ट है, अब ये रैप टेक्स्ट में भी तीन फीचर यहाँ पे दिए गए हैं।
आपको अगर रैप टेक्स्ट आपको खाली प्रिंट में चाहिए, आपको वहां पे लेजर क्रिएशन में नहीं चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। या आपको प्रिंट में नहीं चाहिए, खाली एक्सपोर्ट एंड शेयर, मतलब खाली आपको मतलब प्रिंट छोड़ के जो आप नॉर्मल जनरेट करोगे पीडीएफ या रिपोर्ट्स वहां पे चाहिए, प्रिंट में नहीं चाहिए, तो आप खाली एक्सपोर्ट शेयर कर दो। या आपको अगर तीनों में चाहिए तीनों कर दो, या आपको नहीं चाहिए तो नॉट एप्लीकेबल कर दो। इसको जैसे अपने नॉट एप्लीकेबल करते हैं, अब अपने अगर जाएंगे ये वाला एंट्री को, अब अपने एक बार देखते हैं। अब आप अगर देखोगे, ये यहाँ पे सिंगल लाइन में आ रहा है। पहले ये मल्टी दो लाइन में आ रहा था, ये अभी रैप टेक्स्ट नहीं हो रहा है, ये सिंगल लाइन में ही आ रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे भी अगर आप देखो, ये रैप टेक्स्ट बंद हो गया है यहाँ पे। ये पूरा यहाँ पे ही आ रहा है क्योंकि हमने रैप टेक्स्ट वहाँ बंद कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल लाइन में आ रहा है। आप पूरा यहाँ पे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। सो दिस वाज अनदर एनहांसमेंट। सो एनीवन हु वांट्स टू एनीथिंग, आपको यहाँ पे कुछ भी पूछना है? एनी क्वेरीज ऑन दिस? तो एनी क्वेरीज ऑन दिस और द प्रीवियस फीचर इनवॉइस का, जो हमने ये क्या बोलते हैं? तो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क और एनीथिंग इफ यू वांट टू सजेस्ट, कुछ भी ऑन द रैप टेक्स्ट और द इनवॉइस कस्टमाइजेशन। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को एनहांसमेंट? ठीक है, कुछ काम का है? सो यस श्वेता जी, आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, बट अगेन वो अपने को चाहिए नहीं परचेज पर। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ श्वेता जी कि हमें परचेज ऑर्डर में भी कस्टमाइजेशन करना है। सो अगेन, परचेज ऑर्डर, सो यू गेट द ऑर्डर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी और उसको आप यहाँ पे बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। सो उसमें आई डोंट थिंक कि आपको कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है। कस्टमाइजेशन समथिंग कि आप खुद कुछ जनरेट कर रहे हो अपना टैली में, एंड यू आर शेयरिंग विद द कस्टमर्स, सो वहां पे आपको कस्टमाइजेशन चाहिए। तो या आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड इन परचेज। यस, यस, यस। ओके। So let's start with the third major enhancement, which is HSN. Like there are some major enhancements in the GST part in the Tally as well. So वो क्या है वो एक बार अपने देख लेते हैं। So just a sec. Let me share my screen here. Okay. So is my screen visible? Anyone? Okay. Okay. चलिए। So let's start. तो तो आप में से कितने लोग टैली से जीएसटी की वर्किंग्स करते हैं, जीएसटी की फाइलिंग्स करते हैं? कितने लोग जीएसटी के लिए यूज करते हैं टैली को? एंड उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है आप लोग को? आई वुड लव टू हियर दैट। जो जीएसटी यूज करते हैं टैली के थ्रू, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, कुछ इश्यूज आते हैं फाइलिंग के टाइम? ओके। तो एरर्स का इशू आता होगा, वैलिडेशन इश्यूज, जो अपने जीएसटी रिटर्न्स अपलोड करते हैं उस समय वैलिडेशन इश्यूज आते हैं। सो मेरे साथ होता है। लाइक आई हैव अ क्लाइंट जिसका मल्टीपल स्टॉक आइटम्स है, मल्टीपल एसकेयूज है उसके, एंड ईच स्टॉक आइटम के उसके एचएसएन है। एंड द क्लाइंट डज नॉट मेंटेन द एचएसएन क्वाइट प्रॉपरली ऑफ द स्टॉक आइटम्स। तो वो मुझे हर महीना जीएसटी का डेटा भेजता है, एंड वो डेटा मैं सेल्स परचेज का सेल्स और का इनवॉइस चेक करके उसका वैलिडेशन करके मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। बट एवरी टाइम व्हेन आई अपलोड इट वहां पे एरर आ जाता है एचएसएन का इश्यूज के कारण। तो वो फिर मुझे मैनुअली देखना पड़ता है एचएसएन का, एंड उसका सारा कोडिंग और ठीक करना पड़ता है। तो ये एक मेरे साथ एक इशू आता है।
ऐसा आप लोग के साथ भी किसी के साथ होता है क्या? सो एनीवन, या खाली मेरे को आता है? ठीक है। ओके। तो उस चीज को यहाँ पे एड्रेस किया गया है, टैली ने एड्रेस किया है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो एक बार अपने देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ। आप यहाँ जाओगे, स्टॉक क्रिएट, मैं यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ एक तो से फैब्रिक, फैब्रिक बोल के मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया, ठीक है। सो प्राइमरी, मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ से ग्राम्स, नहीं ग्राम्स तो किया वही ना, सॉरी, मीटर। इसका मैंने यूपीसी डाला, मीटर डाल दिया। ये 2 डेसिबल प्लेस तक मैं रखता हूँ। ये मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब अगर आपने, आप में से किसी ने भी जो भी जीएसटी करते हैं, अगर आपने देखा होगा जीएसटी के पोर्टल पे या जीएसटी के वेबसाइट में जो भी एचएसएन कोड्स दिए हुए हैं, देर आर लाइक मोर देन 23,000 एचएसएन कोड्स है वहाँ पे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द 6 और 8 डिजिट की, वहाँ मोर देन 20,000 एचएसएन कोड्स हैं। तो आपको वो एक खोजना एंड वो एचएसएन कोड, सही एचएसएन कोड यहाँ डालना, दैट इज लाइक एक बहुत ज्यादा एक कम्बसम टास्क होता है। तो वो चीज को टैली ने एड्रेस किया। सो वो सारे एचएसएन कोड्स को टैली ने इस रिलीज में टैली में ही डाल दिए, सारे एचएसएन कोड्स। तो यहाँ आपको क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स करो। अब यहाँ आपको जैसे अगर नहीं, आपको कोड पता है आप कोड डाल दो, आपको कोड नहीं पता, आपको स्टॉक आइटम पता है, स्टॉक आइटम लिख दो। अब मैंने जैसे फैब्रिक लिखा, तो फैब्रिक से रिलेटेड जितने एचएसएन कोड्स हैं सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो यू कैन लाइक इजीली चूज कि आपको कौन सा एचएसएन कोड आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आपको यू डोंट हैव टू कि मेरे को 4 जगह सर्च करना पड़ेगा, जीएसटी एक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें मैं सर्च करूं फिर यहाँ डालूं, वो सब चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। सो एंड तो सपोज मैं क्या करता हूँ, अदर फैब्रिक्स, ये मैंने किया। सो डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, वो भी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो मेरे क्लाइंट का क्या था, उसने खाली एचएसएन कोड डाला था, कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं था, तो मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि क्या चीज का है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप जस्ट आप स्टॉक आइटम भी टाइप करोगे तो आप एचएसएन कोड सर्च करके आप डाल सकते हो यहाँ पे। वो आपने डाला, अब जीएसटी रेट है वो भी अपने एक बार डाल देते हैं, सपोज 18% गुड्स, ठीक है। ये हमने क्रिएट किया एक तो। अब एक चीज और क्या होता है यहाँ पे, सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स कि आप एचएसएन सर्च कर सकते हो। सो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता था कि कैसे करें एचएसएन सर्च, क्या प्रोडक्ट के लिए क्या एचएसएन है, वो सारी चीजों को टैली ने एड्रेस किया। वन मोर थिंग इज, आप अगर यहाँ पे देखोगे एक बार, मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ जस्ट सेकंड। स्टॉक आइटम में जाके मैं एक बार कोई एक का पर्टिकुलरली एचएसएन गलत डाल देता हूँ, जस्ट एक बार ट्राई करता हूँ। एक अ, यहाँ पे ये है ना, इसको मैं कुछ ही कर देता हूँ, फैब्रिक ही कर देता हूँ जैसे 71081300। ये मैंने एक बार लिख लिया, मैं एक बार इसका एक्सेशन चेंज कर देता हूँ। ये कलर सी फैब्रिक, ठीक है।
अब एक बार मैं कहता हूँ जो अपने करते हैं जनरली DOG 1। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया, वैलिडेट HSN SSC। ये दिख रहा है आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे, वैलिडेट HSN SSC, ये पहले नहीं था। इसको अपने एक बार क्लिक करते हैं। So, एक बार लाइक दिस इज नॉट वर्किंग हियर। आप जब अपलोड करोगे GST पोर्टल पे, यू विल गेट द एरर देयर। तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये वाला स्टॉक आइटम में ये HSN गलत है। तो यू कैन ऑलवेज, आपको यहाँ दिख, आप वो चीज यहाँ पे ठीक कर सकते हो। ये जैसे आ रहा है, HSN SSC इज इनवैलिड, मिसमैच्ड, नॉट स्पेसिफाइड। ये यहाँ पे आ रहा है। इसका आपका गोल्ड है, इसका HSN नहीं है। ठीक है। अब ये सपोज करो आपका यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए होता, से आपका। यस मैम, वही बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, यहाँ पे जो भी है, अब आप उसको, आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल आपका इनवॉइसेस है, आपका सपोज से 15 इनवॉइसेस है जहाँ पे सेम स्टॉक आइटम में आपका एरर आ रहा है। तो आपको वो बार बार मतलब उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जितना इनवॉइसेस आप पूरा सिलेक्ट कर लो। यहाँ मेरा जो सिंगल आ रहा है, नहीं तो आप मल्टीपल को एक साथ सिलेक्ट करके आप स्टॉक आइटम में ऑटोमेटिकली वो ठीक कर सकते हो। HSN कोड वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में एक साथ ठीक हो जाएगा। मेरा क्योंकि ये सिंगल में आ रहा है, इसलिए मैं इसको जैसे यहाँ स्पेसिफिक डिटेल्स करके गोल्ड, ये मैं यहाँ कर देता हूँ। ये यहाँ ठीक हो गया। यहाँ क्योंकि मैंने GST और कुछ नहीं डाला इसलिए ये एरर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ चाहो तो मल्टीपल को एक साथ ठीक कर सकते हो। हम्म। आप उसको चाहो तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन आ रहा है आपका, तो आप एक साथ सारे ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लो। फिर उसको आप वैलिडेट में जाके आप HSN कोड को वहां पे डाल दो। तो आपका मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ अपडेट हो जाएगा, आपको एक एक करके सारे ट्रांजैक्शन को ठीक नहीं करना है। तो ये एक फीचर आया था, और एक HSN सर्च करके अपडेशन का फीचर था। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स इन GST। एक और फीचर आया है विच इज इन द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक था जिसमें अपने इनपुट्स और को वेरीफाई कर सकते थे। तो वहां पे इसमें एक फीचर आया है। यहाँ पे आप जैसे इनवॉइस में जाओगे, तो इस तरह से आपका आता था। तो यहाँ पे एक नया व्यू इंसर्ट किया गया है, बुक्स व्यू। आप इसको क्लिक करते हो, ये पहले नहीं था। तो दिस इज बेसिकली डन कि आपका बुक्स में क्या क्या इनवॉइसेस है, आपका इनवॉइस मैनेजमेंट में क्या इनवॉइस आ रहा है, उसको रिकनसाइल करने के लिए ये पर्टिकुलर व्यू लाया गया है। एंड यहाँ पे जैसे मेरा दो मिसमैच दिखा रहा है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पे मैचिंग में भी जहां जहां पे डिफरेंसेस है, जो पार्ट में डिफरेंस है, उसको रेड करके हाईलाइट कर दिया जा रहा है, जो पहले नहीं होता था। यहाँ पे आपका रेड करके पूरा हाईलाइट हो रहा है कि क्या डिफरेंसेस है। सो दिस अगेन इज वन ऑफ द अपडेट्स ऑफ 7.1, कि आपका जो इनवॉइस मैचिंग है उसके लिए ये आप यूज कर सकते हो। एंड बुक्स व्यू लाया गया कि आपका जो बुक्स में जो ट्रांजैक्शन है उसको इजीली आप मैच कर सकते हो। ये पहले नहीं था। अब अगेन एक चीज और था यहाँ पे कि जैसे कोई इनवॉइस है, आप उसको यहीं पे हाँ, आपको इनवॉइस आप यहीं पे उसको आप ठीक करते हो
यहाँ पे जो आपको करना है, आप यहाँ पे अपडेट करोगे तो पहले ये क्या होता था, यहाँ आप अपडेट करते हो फिर आपको पोर्टल पे जाके अपडेट करना पड़ता था। अभी है कि अगर आपका जीएसटी कनेक्टेड है, आप यहाँ पे उस चीज को अपडेट करते हो, एक्सेप्ट या पेंडिंग या कुछ भी करते हो, वो ऑटोमेटिकली पोर्टल में भी अपडेट हो जाएगा, तो अगर आपका कनेक्टेड है जीएसटी से तो दिस वाज वन ऑफ द अपडेट्स। ये चीज यहाँ पे किया गया था कि यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हो, दिस ये आपका रेड में आएगा एंड द बुक्स व्यू। These are two of the major updates of IMS, the HSN as well as the IMS update. एक और अपडेट आया गया है, since due to paucity time I won't be able to demonstrate it, but मैं एक बार आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक एक सेकंड। एक और अपडेट आया गया है जो आपका लास्ट ईयर लाया गया था, नॉन करंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। एक मिनट, एक मिनट कुछ स्क्रीन शेयर। तो इज द स्क्रीन विजिबल, दिख रहा है सबको? ठीक है। सो इसमें तो दिस अपडेट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। मतलब अगर आप 7.1 डाउनलोड भी करोगे तो भी आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन क्या है वो चीज मैं बता देता हूँ। सो बहुत सारे लोग अभी, जैसे पहले लास्ट ईयर आया था नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एक एक्सेल यूटिलिटी दिया गया था, जो आप टैली से डायरेक्ट मैप करके आप बैलेंस शीट बना सकते हो। सो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जो शेड्यूल 3 डिवीजन 1 का जो बैलेंस शीट होता है कंपनीज का, उनके लिए ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं था। तो मेनी प्रोफेशनल्स आर यूजिंग ओडीबीसी, बट ओडीबीसी में काफी प्रोफेशनल्स का इशू आता था कि उनको टैगिंग में इशू आता था, बहुत सारा मैप नहीं होता था लेजर्स। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 3 का अपडेट लाया गया इस बार, विच इज एक विच इज थ्रू अ प्लगइन कि आपको आपका आपका खाली एक एक्टिव टीएसएस सीरियल नंबर होना चाहिए। वो टीएसएस आप साइट में डालोगे तो वो प्लगइन ऑटोमेटिकली आपका लाइसेंस में आ जाएगा, लेकिन ये स्टिल अंडर डेवलपमेंट है अभी। सो ये कैसे काम करता है, टैली में आपको जो अपना आपने बैलेंस शीट और आपने बनाया, अपने अकाउंट फाइनलाइजेशन किया, तो आप बैलेंस शीट वंस यू ओपन द बैलेंस शीट, आप एक्सपोर्ट में जाओगे तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल में एक यूटिलिटी एक्सपोर्ट होगा, जिसमें फर्स्ट आपका पूरा जो आपका उसमें आपका चार टाइप का रिपोर्ट जनरेट होगा। एक है आपका ट्रायल बैलेंस जनरेट होगा, एक आपका स्टॉक स्टॉक रजिस्टर जनरेट होगा, सन्डी डेटर्स जनरेट होगा, सन्डी क्रेडिटर्स जनरेट होगा। ये चारों आपका करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर के लिए आपका जनरेट होगा, ताकि वो आपका नाउ व्हाट इज दिस ट्रायल बैलेंस, आपका मेजर आपका जो बैलेंस शीट ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है। स्टॉक आइटम्स है इसकी बहुत बार, जैसे अगर आपको स्टॉक का खाली लेजर्स चाहिए और या आपको पूरा जो स्टॉक रजिस्टर है उसके बेसिस पे आपको स्टॉक का वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए पूरा स्टॉक रजिस्टर एक्सट्रैक्ट होगा। सन्डी डेटर्स क्रेडिटर्स की आपको इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए या आपको एजिंग कराना है, उसके लिए आप वहां से जनरेट कर सकते हो। वंस यू जनरेटेड दिस, आपको वो मैपिंग करना होगा। वो मैपिंग का वहां पे एक्सेल वो जो यूटिलिटी है उसी में मैपिंग का जगह है। कुछ मैपिंग ऑटो मैपिंग हो जाएंगे, जो वो डिटेक्ट करके नाम के हिसाब से डिटेक्ट करके टैली मैपिंग कर देगा, उसको आपको चेक करना है, बाकी मैपिंग आपको करना है। मैपिंग करना, वंस यू डू द मैपिंग, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डेट ऑफ एंट्रीज एंड कौन सा डेट पे क्या एंट्री हुआ है, वो करंट या नॉन करंट एसेट भी बाइफर्केशन कर देगा, विच इज अगेन कस्टमाइजेबल, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। देन कुछ कुछ नोट्स ऐसे होते हैं विच इज लाइक शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, नॉट जस्ट अबाउट द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अलावा भी काफी नोट्स डालने पड़ते हैं। से फॉर एन एग्जांपल, just a second. So just let me complete this section. Then we'll take 5 to 10 minutes. Then we'll take the query. तो उसके बाद क्या होता है, कुछ जस्ट शेयर कैपिटल है, आपने उसमें ऑथोराइज पेड अप शेयर कैपिटल डाला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज कोई आपका बाईबैक हुआ है, आज कोई आपके शेयर के कोई राइट्स हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस है, वो सारे आपको मेंशन करने हैं, तो वो इन नोट्स आपको मेंशन करने पड़ते हैं। आज ऐसे लोन्स लोन्स हो रहे हैं, लोन्स के आपको जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उसके आपको टर्म्स ऑफ रीपेमेंट मेंशन करने पड़ते हैं। वो सारी फीचर्स आपके उस एक्सेल यूटिलिटी में दी हुई है। एंड वहां पे जो आपका शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट ने जो जो फील्ड्स दिया है फॉर्मेट में, जो फील्ड्स है उस हिसाब से सारे हेडिंग्स अरेंज किए हुए हैं। सो ये आप एक बार मैपिंग और कर लेते हो,
देन आपका पूरा बैलेंस शीट वहाँ रेडी हो जाएगा। वो चीज आप पूरा जनरेट कर सकते हो प्रॉपर फॉर्मेट में, पीडीएफ में या एक्सेल में आप पूरा जनरेट कर सकते हो। बट दिस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, दिस विल कम इन द लाइक द फुल रिलीज। So these were the updates. One more update is connected banking tally में एक फीचर है। उसमें पहले 3 बैंक सपोर्ट करते थे, कोटक, एक्सिस एंड एसबीआई। उसमें अभी आईसीआईसी बैंक भी लाया गया है। तो आईसीआईसी बैंक का भी आप स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, पेमेंट करवा सकते हो। जो कोई आपका पेमेंट एंट्री हुआ हुआ है वो टैली में जो पेमेंट एंट्री है उसके बेसिस पे आप पेमेंट इनिशिएट कर सकते हो बैंक में। वो सारी फीचर्स लाई गई है। So these are the major updates. Mm, So that's all. ये कुछ major updates आए थे, which I thought would be important to discuss. So just a second. So if anyone wants to अगर if anyone wants to ask anything, so we have five minutes. अगर किसी को कुछ पूछना है anything या किसी को कुछ बोलना भी है, then they can unmute themselves and they can tell me. So we can discuss it. It's an open house. आप लोग कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, so you can ask. So we can discuss here. Okay, anyone wants to say anything? आप लोग कोई भी चाहो तो कुछ भी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, किसी को कुछ बोलना है तो बता सकते हो। Otherwise, you can close the session. I don't think so. Like कोई queries या कुछ है किसी का? So thank you everyone. No, ma'am. This is just for the this is just regarding the updates. So, ma'am, there is no Neena ji, there is no specific like video on this. It is still under development. एक बार आ जाता है, then we can have a dedicated session on this also. अगर आप बोलोगे, then we can have a dedicated session on this. Okay. So thank you everyone for giving me this opportunity to like interact with you all. And please join my channel, so Excel and Insights. So you'll get regular updates on the Tally as well as on Excel and AI automation also. You can also connect with me on LinkedIn if you want to, if you have any queries or anything. So you can search Shreyans Kothari there and you can connect with me. Thank you. And would request you one more thing, would request all of you. So I'll be sharing one feedback form in the group like after some time. So request you all to please fill up the form and give your valuable feedback to me. So like how can I improve, or how can we do more topics and better things to discuss. Okay. So let's close this session. Thank you everyone.